Class 12 Subject Education. So our topic for today is Aims of Vedic Education. The aims of Vedic education have been widely discussed by Dr. A.S. Altekar as following. Number 1. Development of religious feelings. Education in Vedic era is synonymous to religion and religious training of rituals. In this era, as education was imparted by the Brahmin and religious leaders of the state, they observed a strict religious discipline in all the educational activities. The other reason of emphasizing religious feeling is that the man is prepared for the emancipation. The emancipation is possible only through realization of ultimate knowledge through religious and rigorous training. So as we know that the base of ancient Vedic education was religion. So the focus is on religious feelings. सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इनका जो फर्स्ट एम है वो था डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स को डेवलप करना. सो जो एजुकेशन सिस्टम था वैदिक एरा में वो रिलीजन से बहुत सिमिलर था. रिचुअल्स मीनिंग होता है संस्कार या सिस्टम. ब्राह्मण्स ही एजुकेशन देते थे और जो लीडर होते थे स्टेट के, और ब्राह्मण्स ये वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्होंने रूल्स बना रखे थे. बहुत डिसिप्लिन था एजुकेशन की हर एक्टिविटी में, हर फील्ड में. और इनका जो मेन एम होता था, जो मेन इनका जिसके लिए प्रिपेयर करते थे अपने स्टूडेंट्स को, वो था एमेंसिपेशन यानी कि मोक्ष या लिबरेशन. तो इनका जो मेन एम था वो एमेंसिपेशन था, मोक्ष पाना था. तो इनका मेन फोकस होता था रिलीजियस फीलिंग को स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना. सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट. द कैरेक्टर बिल्डिंग इज द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट एम ऑफ वैदिक एजुकेशन. द गुरुकुल सिस्टम ऑफ वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड ऑल दोज amenities and training which are helpful in blossoming the personality of a brahmachari in ashram. The serene, calm and cool natural environment of Gurukul in the dense forest, living with great gurus, following the mass model, all are the conditions which promote their character. Thus, building the character of the student was deemed as one of the essential objects of education. The character is more important than the wisdom of the individual as voted in Manusmriti. So in this point, they said that the development of the character is more important इवन देन द विजडम, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी था एक इंसान की विजडम के का डेवलपमेंट करने से. मतलब कि इनका पूरा फोकस था एक एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को डेवलप करने का. तो ये हर तरीके के अम्यूनिटीज़ यानी कि सारे कंफर्ट, आपको सारी सुख सुविधा जिसे हम कहते हैं प्रोवाइड करते थे, हर तरीके की ट्रेनिंग देते थे एक ब्रह्मचारी की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. हम हियर वी सी दैट द वर्ड गुरुकुल सिस्टम. What is Gurukul system? The Gurukul system is an ancient learning method. The main motto is to develop the knowledge and they were highly focused on education. The students lived with their gurus. The guru trained their student with the meditations, yogas and other standard. गुरुकुल क्या होता था, एक बहुत ही पीसफुल जगह पे या एकदम कहीं सिटी से अलग दूर होता था, और इसमें जो है स्टूडेंट अपने गुरु के साथ रहते थे. और इनका जो एम होता था वो क्या होता था, वो पूरा एजुकेशन पे ही फोकस होता था. और स्टूडेंट अपने गुरु से ही सब कुछ सीखते थे और वेद वगैरह भी जो उनके गुरु उनको सिखाते थे. So they provide all kind of comfort, calm and cool natural environment for character development. Number third, development of personality. Number third point है इनका personality development का. Personality क्या होती है? What is personality? Personality is the overall impact of an individual. किसी भी individual का जो overall impact होता है that is called personality. The all-round development of personality is also the most important aim of Vedic education. In order to realize this aim, the rigorous training in self-discipline, self-realization and self-esteem are imparted in the Vedic system of education. Okay, as we can see the three words self-discipline, self-realization and self-esteem. First, let me tell you what is self-discipline. Self-discipline is the ability you have to control and motivate yourself, stay on track and do what is right. Self-esteem is used to describe a person's overall sense of self-worth or personal value. And self-realization is the truth of who we are or what we are. Okay.
सो इनका जो एम होता था वो था पर्सनालिटी को डेवलप करने का। ये सिखाते थे किस तरीके से एक जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, सेल्फ एस्टीम अपने आप में वो डेवलप कर सकता है। और इसके लिए ही वो टाइम टाइम पे वहां पर जो है डिबेट्स, डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंस होते थे। नंबर 4, इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। नंबर 4 इनका जो एम था वो था इनकलकेट करना, किस चीज को, सिविक और सोशल ड्यूटी, यानी कि लोगों को उनकी सिविक और सोशल ड्यूटी के बारे में अवेयर कराना। द ब्रह्मचारीज आर ट्रेन्ड इन द सिविक एंड सोशल ड्यूटीज इन द फ्यूचर लाइफ। द एजुकेशनिस्ट हैव डिवाइडेड होल ह्यूमन लाइफ एंड इनटू 4 आश्रम. The brahmachari's ashram is not only meant for intellectual development and character formation phase of. Okay, I'm going to discuss all this in very short. तो इनका जो एम होता था वो क्या था, सिविक और सोशल ड्यूटी को फैलाना, अवेयर कराना लोगों को। पॉइंट नंबर 5, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। सो इनका जो नेक्स्ट एम था वो था नेशनल कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति को प्रिजर्व करना और उसको फैलाना, स्प्रेड करना। So as we know that education is strongly related to our culture. हमारे कल्चर और एजुकेशन में एक बहुत सॉलिड रिलेशन है। सो यहाँ पे ये एजुकेशन के थ्रू अपने जो आपका नेशनल कल्चर है उसको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरीके से उसको स्प्रेड यानी दूर दूर तक फैलाना था, उसका ये एजुकेट करते थे उसके बारे में। इसमें ये बताते थे किस तरीके से हम अपने वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, कैसे हम उसे फॉलो करें और किस तरीके से हम उसको आगे लोगों तक फैलाएं, उसके बारे में ये बताते थे। वैदिक लिटरेचर एंड ट्रांसफर इट टू हिज एबल लर्नर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने जो भी एबल इनके लर्नर होते थे, जो बहुत अच्छे होते थे, उनको उनका ये ट्रांसफर करते थे। दिस इज द रूटीन प्रोपगेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये क्या था, इंडियन कल्चर का एक प्रोपगेशन था। प्रोपगेशन बन गया था, मतलब प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी चीज की पब्लिसिटी करना, उसको स्प्रेड करना या ब्रॉडकास्ट करना। नंबर 6, प्रमोशन ऑफ सेल्फ सफिशियंसी एंड एम ऑफ लाइवलीहुड। अब इनका जो नेक्स्ट एम था वो था प्रमोशन ऑफ सेल्फ सफिशियंसी। का मतलब हुआ कि सफिशिएंट मतलब जब आप एक पॉइंट पे आकर के ये फील कर सके कि हाँ अब आप इनफ है आपके लिए, या आपका जो लाइवलीहुड यानी जो आप रोजी रोटी कमाने का इनका एम था, एक इंसान को इस लायक बनाना कि वो खुद अपनी लाइफ में अर्न कर सके और खुद के लिए जी सके। वैदिक एजुकेशन नॉट ओनली स्ट्रेसेस ओवर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन अ हार्मोनियस मैनर, बट इट ऑल्सो अटेम्प्ट टू मेक द इंडिविजुअल सोशली एफिशिएंट। इनका जो अटेम्प्ट था वो क्या था, एक इंडिविजुअल को सोशली एफिशिएंट बनाने का था। एफिशिएंट यानी कि इतनी उसमें कैपेसिटी, उसको इतना एजुकेट करें कि वो इतना केपेबल बन जाएगी, सो दैट they can adjust with their parental vocations and become self-sufficient member of the society। वो अपने parental vocations में adjust कर सके और एक self-sufficient member बन सके अपने society का। So these all are the important aim of Vedic education. That's all for today. Thank you so much.